Hello everyone. Hope I'm audible to everyone. Hello everyone. Thank you for joining today's webinar. My name is Malay Joshi and I welcome you all to the third and last but not the least session of this three-session Mira Indicator webinar series. Let me begin with a quick introduction to what we'll be covering in this session. So in today's session, you will learn about understanding of order flow, delta and market pressure, and finally we have the integrated strategy toolkit consisting of order flow and market profile. So this session will help you get started on your trading journey with Mira indicators. And not to forget that Mira indicators are free with an Excelpic subscription. I already mentioned it in last two sessions, but in case for those who are not available, if purchased separately, the cost of this indicator would be around 1 lakh. But with Excelpix data feed, you will get them absolutely free. And why am I keep telling this? Because it is very important, as Excelpix broke the old tradition and changed the game completely. Because earlier a client need to pay a huge amount and purchase the indicator separately to kickstart their trading journey, but now you will get it free. And for those traders who are just starting their trading journey, they can also trade like a pro traders with the premium indicators. So this is the big step towards providing the premium indicators to small traders also. And again, we are also privileged to have with us Mr. Parag Sharma, the founder of ParaTrade. And as I mentioned in the last two sessions, Mr. Sharma brings over 15 years of experience in using the market profile and order flow indicators. And he is the perfect expert to guide you through this session, to guide you for the TPO and order flow indicator. So without further delay, let me hand it over to Mr. Parag Sharma. Hello Um, Parag sir, am I audible? yes, yes, yes. Okay Parag sir, you can take over. Okay, right. Thank you, वाले. Good morning, guys. Good morning. Uh, अभी तक हम लोग अपनी जो जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं उस पे हम लोग मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे प्रैक्टिकल वे में यूज करो या स्पेशल मैं कहूंगा प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करते हैं, तो वो स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. जो लोग अभी फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो, वैसे इंट्रो मले ने दिया हुआ है, मेरा जस्ट एक इंट्रो मैंने अपना यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. जो ट्रेडिंग में चेंज आया वो मेरा चेंज आया स्पेशली ये जो टूल्स हैं, ये जो प्रोफेशनल टूल्स है, मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये बहुत स्ट्रांग टूल्स हैं, बहुत अच्छे टूल्स हैं ये. और इनको यूज करने के बाद आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में मार्केट क्या कर रहा है. मैं बहुत क्लियर कट चीज कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम एक जो हमारा ट्रेडिंग फ्लोर है वहां पर खड़े होते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है. लिटरली मार्केट कहीं ना कहीं हमसे आकर कुछ बातें कर रहा होता है. तो अभी तक की जो जर्नी थी हमारी, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि 14 जून को हमारा वेबिनार हुआ था. नेक्स्ट वेबिनार 21 जून को था, जहां पर लोकेशन फाइंड करना शुरू की थी. अब हम बात करेंगे कि एंट्री टाइमिंग कैसे मैनेज की जाए विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर फ्लो. तो यहां पर एक्सेल पिक्स ने जो एक टूल्स अपने लेके आए हुए हैं, मीरा चार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे. और ये जो इनिशिएट लिया गया है सब, ये जो एक अपॉर्चुनिटी हमें एनकैश करना चाहिए इसको, राइट. तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर फ्लो से. ऑर्डर फ्लो है क्या चीज? सबसे पहले एक काम करते हैं, चार्ट पर पहले ओपन करते हैं कि ऑर्डर फ्लो को हम कैसे देखेंगे. एक नॉर्मल मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है. जब हम इसके इंडिकेटर सेक्शन पर जाते हैं, इंडिकेटर सेक्शन पर जाने के बाद हमें यहां पर मीरा चार्ट में एक फुटप्रिंट का ऑप्शन मिलता है. इसको मैं सेलेक्ट करता हूं. तो सबसे पहले यहां पर चीज क्या होगी
कि आपका जो टिक साइज है, जो प्रोफाइल पर टिक साइज यूज कर रहे हो, सेम टिक साइज आप यहां पर यूज करोगे, उसके बाद आपको ये चार्ट शो होना शुरू हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, ये चार्ट आ रहा है, एक्चुअली मैंने कुछ कस्टमाइज यहां पर किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, तो मैं अपना टेम्पलेट यहां पर अप्लाई करता हूं। ये चार्ट हमारे पास में आ गया। एक बेसिक आपको इसका आइडिया देता हूं कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं हमें यहां पर शो हो रही हैं। पहले मैं बाय डिफॉल्ट जो इंडिकेटर सेटिंग है वो दिखाता हूं आपको। अब यहां पर हमें बार नहीं दिखाई देगी, यहां कोई बार नहीं होगी, यहां पर उस बार का एक एक्सरे हमें शो होता है। एक्सरे इन द सेंस कि इस बार में किस तरह की एक्टिविटी हुई। जब मैं कहता हूं किस तरह की एक्टिविटी हुई, इट मींस कि यहां पर बायर और सेलर ने किस तरह से ट्रांजेक्शन किया है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार हमें यह समझ में आ जाएगा ना कि बायर सेलर किस तरह ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमें डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है, लॉजिकल वे में स्टडी किया है। अगर मैं कहता हूं कि मार्केट पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक डाउनफॉल हुआ, तो एक रीजन मेरे पास होगा, या अब मैं उम्मीद करता हूं ये रीजन आपके पास होगा, क्योंकि एक स्टोरी जो बिल्ड करना होता है वो कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। और बेसिकली मैं फोकस करता हूं वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग पर। तो अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी डाउन मूव हुआ और पॉइंट ए टू पॉइंट बी अप मूव हुआ, तो एक रीजन है, एक प्रॉपर रीजन है कि ये वजह है जिसकी वजह से मार्केट अप या डाउन गया। उसके बाद हमने फिर अकॉर्डिंगली अपनी एक कहना चाहिए कि बाई करना है या सेल करना है, माइंड फ्रेम को सेट किया। उसके बाद हम ऑर्डर फ्लो टूल को यूज करना शुरू करेंगे। तो लॉजिकल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे पास उस तरह के कंफ्यूजन नहीं होते, मैं 1 मिनट का चार्ट यूज करूं, मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करूं, मैं 15 मिनट का चार्ट यूज करूं। नहीं, आपको स्टोरी पता है, आपको अपनी परफेक्ट टाइमिंग देखनी है, आप कितना एग्रेसिव ट्रेडर हो उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम अपना छोटा कर सकते हो। 5 मिनट, 15 मिनट, इस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। स्टॉक में जनरली 5 to 15 मिनट हम लोग लेके चलते हैं। तो वहां आपको पता है कि मुझे क्या करना है, केवल हम क्या देख रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है। मैं क्या देख रहा हूं, एक परफेक्ट लोकेशन देख रहा हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं बायर सेलर का ट्रांजेक्शन देखूंगा और एक ऐसे लेवल का वेट करूंगा जहां पर मुझे दिखाई दे जाएगा कि अब सेलर का स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। वो मेरा पॉइंट होगा जहां पर मैं एंट्री करूंगा। बेनिफिट क्या होगा, एसएल लिमिटेड होगा, टारगेट हमें अच्छा मिलेगा, और जो मेन चीज होगी वो होगा कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूं, मैंने अपने पैरामीटर चेक कर लिए, मुझे वो चीजें दिखाई यहां पर दे रही है, इस वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूं। जब आपके पास आंसर होता है ना आपकी ट्रेड का कि मैंने अगर बाई किया तो क्यों किया और सेल किया तो क्यों किया, वो लॉजिकल ट्रेडिंग है। उसमें ना एक आपका कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा कि हाँ मैं ये चीजें बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अब यहां मैं बात करता हूं, पहले स्टेबल की बात करता हूं। स्टेबल में जो मैं दिखाई दे रहा है, डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, वॉल्यूम, मिन डेल्टा, मैक्स डेल्टा, ये कुछ एक चीजें हैं। इसमें कुछ एक चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज। और जो हमें इस बार में दिखाई दे रहा है, इस बार में एक लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है मुझको और एक राइट साइड दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं वो उनको लगेगा कि क्या नंबर्स हैं। तो इजी वे में समझो, हर एक लेवल पर, राइट, हर एक लेवल पर बायर और सेलर कैसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, थियोरेटिकली जो माना जाता है हम कहते हैं सेल साइड, और ये हम कहते हैं बाय साइड। और जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को हम डायगनली देखते हैं कि डायगनली किस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा है। आपको बहुत क्लोजली रीड करने की जरूरत नहीं है, मेरा चार्ट आपको बहुत सारी चीजें हाईलाइट करता हुआ चला जाएगा। ये जो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो, या ये जो चीजें यहाँ पर एक कुछ एक स्ट्रिप टाइप का दिखाई दे रहा है, हर एक चीज की अपनी एक्टिविटी है। मेरा चार्ट का ऑर्डर फ्लो एक बहुत मतलब जितनी चीजें मैं चाहिए होती हैं ओवरऑल, मैं चाहे टीपीओ चार्ट की बात करूं, मैं उसकी वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करूं या ऑर्डर फ्लो की बात करूं, हर एक चीज हमें यहां पर दिखाई देती है। तो एक साइड मैंने कहा सेल साइड, एक साइड मैंने कहा बायर साइड। थियोरेटिकली अब इसको चेंज करवाता हूं कि कैसे कैसे समझना है। अगर हम केवल इसमें में जाएंगे कि सेलर माइनस बायर कर लो तो मैं बाई सेल कर दूंगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब इसको समझना शुरू करते हैं। बेसिकली हमें एक ये समझ में चीज आई कि कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको मुझे देखना है, कुछ नंबर बार के बॉटम पर आ रहे हैं जिनको मुझे रीड करना है, और अकॉर्डिंगली इस चीज को कैसे ट्रेडिंग में हम यूज करेंगे, राइट। तो अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली चीज है कि प्रिंटिंग कैसे होती है इस ऑर्डर फ्लो की। तो ऑर्डर फ्लो में जो ट्रेड्स लिए जाते, जो प्रिंटिंग होती है वो होती है एग्रेसिव ऑर्डर्स की। एग्रेसिव ऑर्डर मींस मैं मार्केट में आया और अगर मैं बायर हूं
तो मैं मार्केट रेट पर जो बाय करता हूं तो वो प्रिंटिंग हमारी ऑर्डर फ्लो पर होती है। उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक्चुअली वो लंबा प्रोसेस है, तो उसमें फिर बाकी चीजें हम कवर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमने कहा क्या बेनिफिट है, क्या ऐसी चीज है जो मुझे नॉर्मल कैंडलस्टिक या नॉर्मल मुझे बार प्राइस बार नहीं दिखा सकती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेस, थोड़ा सा हमें आइडिया लगना शुरू होता है, कहां पर एग्रेसिव बायर आया है, कहां पर सेलर आया है, वो चीज हमें पता लगना शुरू होती है। बिड आस्क जो हमारे पास आते हैं उससे हम एक रिलेशन, एक स्टोरी बनाना शुरू करते हैं, डॉट को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, और ब्रेकआउट जो हो रहे हैं वो एक्चुअल ब्रेकआउट हैं या एब्जॉर्प्शन यहां पर हमारा हो रहा है, राइट। तो ये मैंने ऑर्डर फ्लो का नॉर्मल चार्ट यहां पर मेंशन किया हुआ है। जो मैं यूज करता हूं डेल्टा वॉल्यूम, ये दो चीजें मैं यूज करता हूं। ये एक्टिविटी जो हमें बहुत कुछ चीजें बताती हैं। वॉल्यूम फॉर श्योर, वॉल्यूम पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जब आप इंडाइसेस अगर ट्रेड कर रहे हो तो जो फर्स्ट बार आपकी ओपन होती है, एक बार उसका देखो वॉल्यूम कैसा आया हुआ है। वॉल्यूम अगर लाइट वॉल्यूम, लो वॉल्यूम है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि लो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है। कॉन्टेक्स्ट, आसपास की नियर बाई आप 4 से 8 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी वॉल्यूम कैसा चल रहा था और ये वॉल्यूम कैसा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार, या कुछ टाइम में जब डेल्टा एक्सप्लेन कर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग डेल्टा बार की एक वेटेज होती है जहां से मार्केट मूव शुरू कर, जहां से मार्केट का मूवमेंट शुरू होता है। तो जरूरी क्या है, इंडाइसिस आप फर्स्ट बार से देखना शुरू करो। वॉल्यूम जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होंगे हाईलाइट किए जाएंगे, आपको यहां पर नंबर्स जो आ रहे हैं उससे आप कैच करोगे कि मार्केट में, जैसे मैं छोटे से नंबर्स की बात करता हूं, यहां मेरे को 57,000 दिखाई दे रहा है। अगर मैं बाकी की चीज देखता हूं, मुझे एक बड़ा नंबर यहां पर दिखाई दिया जिसने 1,12,000 मेरे को बताया। इसके बाद मार्केट ने अपमूव शुरू किया, मींस ये ट्रिगर था, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर था जो हम क्लोजली वॉच करेंगे। और जब हम स्टोरी के साथ चल रहे होंगे, अगर मैं स्टोरी में कहता हूं कि यहां पर एक पीओसी लेवल है, उस लेवल पर कुछ एक चीज चेंजेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे, राइट। चलो एक एक करके हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है पीओसी। पीओसी मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अभी तक हमने जो बात किया, हमने क्या कहा कि हम पीओसी डे प्रोफाइल पर देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पर हम पीओसी देखते हैं। यहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है मीरा चार्ट का ऑर्डर फ्लो के साथ में, हम बार बाई बार पीओसी हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। पीओसी से क्या बेनिफिट हमें होगा, सबसे पहली चीज हमें यह पता लगेगा कि कोई बार की पीओसी स्ट्रांग है या वीक। अगर कोई पीओसी स्ट्रांग है, हम उसको अकॉर्डिंगली वेटेज देंगे। जब ये पीओसी स्ट्रांग होगी, आपको दिखाई देगा डेल्टा या वॉल्यूम में कि यहां पर क्या चेंज आया है। तो यहां पर मैं कहता हूं पीओसी, स्ट्रांग पीओसी, नॉट हर एक पीओसी नहीं, स्ट्रांग पीओसी वर्क कर सकती है एज अ टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको बताऊंगा मैं टेम्परेरी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। फिलहाल जैसे मैं ये देखता हूं, आसपास के नंबर को देखता हूं, 64,000 कुछ इस तरह के नंबर है। यहां पर मेरे को 1,59,000 का मुझे एक नंबर मिल रहा है, और ऑलमोस्ट सेम लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर और आया। तो जस्ट अगर मैं छोटा सा जोन यहां पर ड्रॉ कर दूं, और अगर प्राइस यहां पर होल्ड करे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया विद फ्यूल। फ्यूल मींस यहां पर कोई बड़ा ट्रेडर आ चुका है और लगभग एक लेवल पर उसने एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी ली है। यहां से हम एक मूव देख सकते हैं। ये चीज आपको कैंडलस्टिक या नॉर्मल बार पर नहीं दिखाई देगी, ये चीज हमें दिखाई देगी केवल ऑर्डर फ्लो पर। अब अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, अगर मुझे प्रोफाइल में यहां पर कोई एचवीएन दिखाई देगा, से कोई वॉल्यूम प्रोफाइल का अनदर डे वॉल्यूम प्रोफाइल का वीपीओसी आया है या कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू बनी हुई है, उसके बाद ये एक्टिविटी हो रही है, मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। मैं यहां केवल और केवल बाय देखूंगा, और जब मैंने देखा कि हाँ मेरे पास फ्यूल ज्यादा, यहां आपको आंसर क्या मिलेगा, जब मेरे पास फ्यूल ज्यादा है, नियर बाई जो प्रोफाइल का लेवल होगा वहां तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां टारगेट अचीव होगा। तो पीओसी जैसा मैंने कहा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, क्या हमेशा नहीं है, एक्सेप्शन में आपको देता हूं। सपोज अगर मैं कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहा हूं, अगर मैं पेडल लगाता हूं ब्रेक का, जरूरी नहीं है कि सिंगल पेडल में मैं अपनी कार को एक जगह पर रोक पाऊं, हो सकता है वो कुछ और थोड़ा दूर जाकर स्टॉप हो। सेम वे अगर मैंने कहा कि एक सेलर आया और उसने सेल पोजीशन यहां पर अपनी बनाई, तो क्या मार्केट जस्ट इस पॉइंट से वापस होना चाहिए? नहीं, हो सकता है कि थोड़ा सा दूर ये और जाए, उसके बाद मार्केट वापस आए। तो मैं इस केस में क्या करता हूं, मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूं कि अगर प्राइस ने अपसाइड फॉलो थ्रू नहीं दिया और मेरे पास फ्यूल है,
अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करना शुरू करेगा तो ये एक ट्रैप है, ये एक लिक्विडिटी ट्रैप है। मार्केट में अपसाइड आया है, बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहां से डाउनसाइड जाएगा। अगर होल्ड करेगा तो मैं बाई करता हूं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर प्रोफाइल पर यहां पर कोई वैल्यू एरिया हाई, वीपीओसी या कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है जो वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, तो मैं बहुत श्योर हूं कि यहां से मार्केट वापस आएगा। और उससे पहले ये एक्टिविटी हो चुकी, कभी एक्टिविटी आप सेम रेजिस्टेंस लेवल पर देखोगे, कभी सपोर्ट लेवल पर देखोगे। तो टेक अवे यहां पर जो जरूरी टेक अवे है, हमेशा फोकस करो इंपॉर्टेंट लेवल पर कि कोई एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल आया, वहां पर आप ऑर्डर फ्लो को देखना शुरू करो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। इजी इन द सेंस आपको पता है कि आपको हिट कब करना है, स्टोरी के अकॉर्डिंग लोकेशन आपने डिसाइड कर ली, टाइमिंग और लेवल आपको ऑर्डर फ्लो देगा। आपको पता है कि ये एक्टिविटी है, अगर प्राइस इसके नीचे गया मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर यहां कहीं शॉर्ट करूंगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकता हूं। उस टाइम प्रोफाइल हमारी हेल्प करेगा कि हम प्राइस कितना दूर तक जा सकता है, और जो पीओसी है या जो फ्यूल है या जो डेल्टा है, ये आपको क्लू देगा कि मार्केट में कितना फ्यूल आया हुआ है। एक छोटी सी एक्टिविटी का यहां पर नाम लूंगा, रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी और इनिशिएटिव एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो जब आप स्टडी कर रहे होते हो, इवन मैं कहूंगा पहले एक बार स्टडी करो आराम से, आपको डेटा आपके पास होता है, स्टडी करो आराम से कि किस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट में जो हिडन सेलिंग होती है, जब मैंने कहा हिडन सेलिंग, हिडन सेलिंग में क्या होगा, मार्केट एक ग्रीन बार के साथ, राइट, मार्केट एक ग्रीन बार के साथ आपको अपमूव देता हुआ जाएगा, लेकिन इसमें और ऑल ऑफ सडन आप देखोगे मार्केट कुछ ग्रीन वे में, ग्रीन बार के साथ अपसाइड जा रहा है, ऑल ऑफ सडन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में आता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? जब मैं कहता हूं कि मैंने ग्रीन बार देखा, यहां पर प्राइस अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑल ऑफ सडन डाउन मूव, इतना स्ट्रॉन्ग डाउन मूव कैसे आ सकता है? इसका आंसर आपको ऑर्डर फ्लो देता है रेस्पॉन्सिव सेलिंग एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिव बाइंग। रेस्पॉन्सिव जब मैं टर्म यूज करता हूं, इट मींस हिडन। अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है, राइट, अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है विद ग्रीन बार, और कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि प्राइस अपनी पीओसी के नीचे बार बार क्लोजिंग कर रहा है, मे बी इकट्ठे ऊपर चलेगा, अदरवाइज क्लोजिंग, अगेन क्लोजिंग, अगेन क्लोजिंग, यानी कहीं ना कहीं मार्केट को अपसाइड जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपसाइड मार्केट नहीं जा पा रहा, और इसके ये रेस्पॉन्सिव सेलिंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब एक ग्रीन बार हमारी होती है जिस पर मेजर क्लस्टर टॉप पर होते हैं और प्राइस को फॉलो थ्रू देने में दिक्कत होता है, ये एक्टिविटी रेजिस्टेंस लेवल के पास आप देखोगे, आप बहुत जल्दी इस रिवर्सल को कैच करोगे। सेम वे रेस्पॉन्सिव बाइंग में क्या कहता हूं, जब रेड बार के साथ प्राइस डाउन साइड जा रहा है, डाउनसाइड जाते में लगातार अगर ये देखते हैं कि क्लस्टर बॉटम पर आ रहे हैं, प्राइस होल्ड कर रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है, मैंने कहा क्लस्टर माना यहां आया, क्लोजिंग जितना अपसाइड आके आएगा उतना बेटर है, तो ये रेस्पॉन्सिव बाइंग या हिडन बाइंग होती है, जो आपको एक आपकी स्टोरी को बिल्ड करने में हेल्प करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेन चीज क्या है, मेन चीज है किस लेवल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस लेवल पर आप देख रहे हो, उस टाइम आप ये देखो ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि रेस्पॉन्सिव सेल मिले, अनटिल अनलेस अगर वो एक एब्जॉर्प्शन होना है, वहां से इनिशिएटिव एक्शन आना है तो अलग चीज है। इनिशिएट हमने कहा रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, दूसरी हमने कहा था इनिशिएटिव एक्टिविटी। बेसिकली रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी क्या करता है, रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट से प्राइस को वापस करता है, जबकि इनिशिएटिव एक्टिविटी अगर किसी रेजिस्टेंस से प्राइस बाहर आए, यहां से फ्रेश अप मूव या फ्रेश डाउन मूव मिलता है। तो ये चीजें आपको प्रोफाइल की हेल्प के साथ मिल जाएगी। जैसे मैं यहां पर देखता हूं, प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद मुझे एक ऐसी बार मिली जो पीओसी जिसका है वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने इसको स्ट्रांग पीओसी क्यों कहा, नियर बाई जो भी पीओसी है बहुत नॉर्मल है। एक्चुअली जब आप थोड़ा सा यूज टू होगे ना वॉल्यूम के साथ में, डेल्टा के साथ में, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैंने कहा रेस्पॉन्सिव सेलिंग एक्टिविटी ग्रीन बार, जिसका मेजर वॉल्यूम क्लस्टर टॉप पर आया हुआ, ये आपके लिए क्लू होगा कि मार्केट यहां पर एक डाउन साइड एक्टिविटी कर सकता है। एक छोटी सी यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक वाइड स्प्रेड बार आई, एक अभी इस नंबर को जस्ट एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, एक 83,000 मेरे पास नंबर था, एक और बार आई जिसकी पीओसी बहुत स्ट्रांग है, राइट, जिसकी पीओसी बहुत स्ट्रांग थी, मैंने कहा 87,000 की पीओसी, और एज कंपेयर टू प्रीवियस नंबर, ये नंबर भी बहुत स्ट्रांग नंबर है ना, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। इसके बाद प्राइस ने अपसाइड जाना बंद कर दिया।
स्ट्रॉन्ग क्लू है आपके लिए, ये एक रेस्पॉन्सिव सेल हुई है। अगर यहां पर प्रोफाइल का कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, फॉर श्योर मार्केट यहां से डाउन साइड आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी हो चुकी है। कई बार सिंगल रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी के साथ प्राइस डाउन होता है, कई बार मे बी 2 to 3 बार जो इस रिवर्सल को एक हमें देते हैं, राइट। अब यहां पर सेम वे प्राइस डाउन जा रहा है, ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि सारा का सारा जो वॉल्यूम क्लस्टर है वो बॉटम पर आ रहा है और प्राइस ने डाउन साइड जाना बंद कर दिया। मींस यहां पर हम क्या कहेंगे, रेस्पॉन्सिव बाइंग। फॉर श्योर रेस्पॉन्सिव बाइंग एक्टिविटी आपको कहां पर देखनी है, ये एक्टिविटी आपको देखनी है सपोर्ट लेवल पर, और रेस्पॉन्सिव सेलिंग एक्टिविटी आपको जो देखनी है ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पर देनी है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको कहां से मिलता है, ये कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा मार्केट प्रोफाइल से। सेम वे रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी आप थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो को देखोगे तो आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी को देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और है जो आपको इस मीरा चार्ट का जो ऑर्डर फ्लो है ये आपको इजीली दिखाई देगी, सिंगल प्रिंट एक्टिविटी। सिंगल प्रिंट एक्टिविटी का मतलब क्या हम इसको कह सकते हैं, जब किसी बार में कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिंटिंग होती है और उसके कंपैरिजन में टॉप पर एकदम से छोटा प्रिंट आता है, ये क्या करेगा, एक बॉक्स बना देगा। हालांकि मैं बहुत छोटे नंबर होते हैं उन पर ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, प्लस कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं कहूं कि एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, सपोज रेस्पॉन्सिव सेल, यहां पर एक कोई एचवीएन लगा हुआ है, यहां पर आकर अगर मुझे सिंगल प्रिंट एक्टिविटी मिल रही है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, बस ड्राई अप जो भी डिमांड है वो खत्म हो चुकी है, ड्राई अप हो चुकी है, अब प्राइस यहां से वापस आएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट आपके पास नहीं है तो सिंगल प्रिंट एक्टिविटी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इट मींस जब आप सिंगल प्रिंट एक्टिविटी को देखते हो ये अपने आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, पर जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज है आपके लिए लोकेशन, जरूरी चीज है आपके लिए स्टोरी। जो मैंने कहा कि हमारी स्टोरी क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम बना रहे हैं, हम एंट्री देख रहे हैं। तो जब इस तरह की हम एक्टिविटी को देखते हैं, मैं श्योर हूं कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्राइस डाउन यहां से पॉसिबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां से डाउन साइड आएगा। सिंगल प्रिंट एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग आपके लिए क्लू है, राइट। सेम वे स्ट्रॉन्ग, अब एक सिंगल प्रिंट एक्टिविटी ये आई, एक सिंगल प्रिंट एक्टिविटी आई, इसके साथ हम लोग डेल्टा और बाकी जब चीजें कंबाइन करते हैं तो पिक्चर मुझे समझ में आना शुरू हो जाती है। प्राइस डाउन साइड गया, अगर आपको प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट याद हो, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस का, इसको मैंने कहा हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस फॉर श्योर मैं बाई करने वाला हूं। कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सारी की सारी चीजें ड्राई हो चुकी है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री थोड़ा जल्दी मिल सकती है, राइट। जस्ट अ मोमेंट, और आगे चलते हैं। रेस्पॉन्सिव सेल, एक स्ट्रॉन्ग बार आई, एक और स्ट्रॉन्ग बार आई जिस पर पीओसी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और प्राइस ने अप साइड फॉलो थ्रू बंद किया, यानी अपसाइड जाना, या बायर को अपसाइड जाने में प्रॉब्लम हो रही है और बायर को सेलर एब्जॉर्ब कर रहा है या बायर इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल। तो ये एक एक्टिविटी हुई जिसको मैंने कहा रेस्पॉन्सिव। इनिशिएटिव एक्टिविटी क्या होती है, जब सेम साइड में मूवमेंट मिलता है, मैंने कहा डाउन साइड क्लस्टर अपर हाफ में होगा और फॉलो थ्रू जितना स्ट्रांग होगा उसको हम कहते हैं कि ये इनिशिएटिव एक्टिविटी है। यहां से मार्केट एक तेजी से ब्रेक, एक मूव ले सकता है। रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में देखना, उसका रीजन क्या है, रीजन है रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी का देखने का कि आपको रिवर्सल आप बहुत जल्दी कैच करोगे, राइट। तो रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिव बाइंग, रेस्पॉन्सिव सेलिंग। रेस्पॉन्सिव बाइंग क्या हो गया, जब प्राइस अपसाइड जा रहा है, अपसाइड मींस अप बार, ग्रीन बार, और हमें पीओसी टॉप पर मिल रही है। मेन चीज ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कहूं कि एक बार है जिसकी पीओसी टॉप पर, मैं ये नहीं कहूंगा प्राइस यहां से वापस आएगा, मैं ये कहूंगा कॉन्टेक्स्ट चेक करो। अगर ये इनिशिएटिव बाएंगे, राइट, अगर ये इनिशिएटिव बाएंगे तो प्राइस तेजी से अपसाइड जाएगा, और अगर ये रेस्पॉन्सिव सेल है तो प्राइस यहां से रिवर्सल लेगा। आपको आंसर कहां मिलेगा, आपको आंसर मिलता है कॉन्टेक्स्ट पर, राइट। मैंने कहा कि इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि सपोज एक ये वॉल्यूम प्रोफाइल मेरे पास में है, या सपोज कल का एचवीएन यहां पर मेरे पास में है, प्राइस ने क्या किया, प्रिंट ए, प्रिंट बी। अब यहां पर अगर मुझे एक ऐसी एक्टिविटी मिल रही है सो कॉल्ड, जिसको मैंने कहा रेस्पॉन्सिव सेलिंग, इसको मैं वेटेज नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि एचवीएन को मैंने क्रॉस किया हुआ है, यहां कहीं रिट्रेसमेंट पर कहीं भी मुझे
जब मैं डेल्टा का भी को एक्सप्लेन करूंगा वहां पर आपको आंसर दूंगा कि यहां पर आप बाई करो। पर मेन चीज क्या है, यहां पर मैं रेस्पॉन्सिव सेल को वेटेज नहीं दूंगा, यहां मैं बाई देख रहा हूं कि किस तरह से एक्टिविटी चल रही है। अगर मैं इसका जस्ट एक मिरर इमेज बना दूं, मैंने कहा एक एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, और यहां पर जब प्राइस आ रहा है, यहां प्राइस आते टाइम लगातार मुझे रेस्पॉन्सिव सेल मिल रही है, और धीरे धीरे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना शुरू करता हूं। मींस यहां से कैरेक्टर प्राइस चेंज करता है, मैं इजी वे में जहां मेरे को स्ट्रॉन्ग डेल्टा मिलेगा वहां पर मैं सेल लूंगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस वहां पर मेरा होगा, और वहां से जो प्रोफाइल मुझे टारगेट देगा उस टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। अब हम आते हैं डेल्टा पर। राइट, डेल्टा क्या हुआ? डेल्टा एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। कई बार मेरे पास मतलब कुछ डाउट्स आते हैं। पहला डाउट जो जनरल डाउट होता है कि वॉल्यूम और डेल्टा ये दो चीजें होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम और डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है? तो टेक्निकल चीज समझो। वॉल्यूम क्या हुआ? हम कहते हैं वॉल्यूम होता है टोटल नंबर ऑफ बायर प्लस सेलर। वॉल्यूम क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अगर एक वॉल्यूम बार है मेरे पास, सपोज मैंने कहा इसका 1 लाख का वॉल्यूम है, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर ग्रीन बार है तो मैं कहूंगा 1 लाख बायर है, अगर एक रेड बार है वॉल्यूम की तो मैं कहूंगा सेलर है। नहीं, मैं कहूंगा इसमें टोटल नंबर ऑफ बायर और सेलर वो 1 लाख है। अगर सपोज इसके अंदर मैंने कहा 70 के बायर है, ये आपको नहीं पता लगेगा, ये मुझे भी नहीं पता लगेगा। 30 के सेलर है, टेक्निकली ही अपसाइड जाएगा। जैसा मैंने कहा आपको नहीं पता लगेगा, इसका आंसर आपको केवल और केवल स्टोरी देती है कि स्टोरी हमारी क्या चल रही है। सेम वे अगर मैंने कहा ये वॉल्यूम यहां पर इसको रिवर्स कर दो, 70 के सेलर है और 30 के अगर बायर है, तो ये प्राइस डाउनसाइड जाना चाहिए। मैंने आपको टेक्निकल बताया कि एक्चुअल ये होना चाहिए, पर ये चीजें हमें नहीं पता होती हैं, हम लोग स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको ट्रैक करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हुआ? मैंने कहा वॉल्यूम हुआ टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। डेल्टा क्या हुआ? डेल्टा हुआ डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड सेलर। यहां पर टेक्निकल एक चीज आ जाती है। हम एक कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, डेल्टा के लिए हम कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर। एग्रेसिव टर्म मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एग्रेसिव में जो बिड होती है, जो एग्रेसिव बिड हिट होती है, वही ऑर्डर फ्लो पर प्रिंट की जाती है, जो हमें शो होती है। तो पहली बेसिक जो चीज है वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए डेल्टा का। वॉल्यूम के साथ में डेल्टा क्या होता है और वॉल्यूम से ये किस तरह से अलग होता है। डेल्टा के साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज आपको मिलती है, एब्जॉर्प्शन एंड एग्जॉशन। ये आपको परफेक्ट रिवर्सल देती है। जब आपकी स्टोरी एक क्लियर है, कि स्टोरी आपकी क्लियर है, जो टीपीओ चार्ट है उसने आपकी स्टोरी को क्लियर किया हुआ है, जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट है इसने हमारी लोकेशन को क्लियर किया हुआ है, इसके बाद बस ये चीजें कुछ इस तरह की स्टोरी जहां हमें मिलती है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। डेल्टा बेस्ड मैंने कहा एब्जॉर्प्शन एग्जॉशन, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होते हैं कि जहां पर हम अपनी एंट्री या अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब डेल्टा को हम समझना शुरू करते हैं। इस ऑर्डर फ्लो में एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है, हर बार के नीचे आपको डेल्टा मेंशन होता है। राइट, यहां टेबल पर भी डेल्टा मेंशन आप देखोगे तो 5283 4821 जो नंबर बॉटम पर मेंशन है। जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, अगर मार्केट लाइव नहीं है तो आप नीचे देखोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लाइव मार्केट में ये जो चीजें यहाँ हेल्प करती हैं ये अल्टीमेट होती है। राइट, ये अल्टीमेट चीज है। तो अभी हम एक थियोरिटिकल वे समझते हैं। थियोरिटिकल वे में हमने क्या कहा कि डेल्टा जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और जो पॉजिटिव डेल्टा है वो शो कर रहा है बायर को, जो नेगेटिव डेल्टा है वो शो कर रहा है सेलर को। मैं छोटी सी यहां पर एक चीज बोलता हूं, मैं कहता हूं इस प्लस और नेगेटिव के साथ तो चलते हैं, साथ में एक चीज और ऐड करो। सबसे जरूरी यहां पर जो चीज होती है वो होती है फॉलो थ्रू। मैंने कहा 4800 सपोज 40,000, इसको मैं वेटेज दूंगा एज कंपेयर टू 4,000 5,000 1,600 या 1,100। ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। इस नंबर के आने के बाद सबसे पहले तो उसकी लोकेशन देखो कि ये किस लोकेशन पर आई है, नंबर 1। नंबर 2, इस स्ट्रॉन्ग डेल्टा के बाद मार्केट का फॉलो थ्रू है या नहीं। अगर मैंने कहा कि एक लोकेशन आपके पास नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग, तब भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा मिला है, होल्ड। होल्ड क्यों? एक इंट्राडे ट्रिगर आपके पास आया है, इसका फॉलो थ्रू देखो। अगर इसके बाद प्राइस अपसाइड जाने में उसको दिक्कत आ रहा है, राइट, तो प्राइस ये सेलर होगा, अदरवाइज ये बायर होगा।
अगर आपको लेवल पर मिल रहा है तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, राइट। इसको अगर मैं देखूं, अगर जस्ट आपको थोड़ा सा रिकॉल करो लास्ट वेबिनार को, हमने एक हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस दी। हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस के साथ यहां बायर ने हैंड रेज किया, जहां पर मैं बाई करूंगा। क्यों मैं बाई यहां इसलिए करूंगा कि यहां पर स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट इन फेवर ऑफ बायर। ये जेन्युइन बाइंग डेल्टा है, यहां से प्राइस अपसाइड जाएगा। तो डेल्टा का जो एडवांटेज है, कई बार ऐसा होगा आपको वॉल्यूम नॉर्मल दिखाई देगा, डेल्टा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, वो सिंगल साइड जब एंट्रीज होती है तो वहां पर ऐसा होता है। भाई आप कई बार ऐसा होगा जहां वॉल्यूम भी आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, आपको डेल्टा भी मैक्सिमम दिखाई देगा, पर कई बार ऐसा होगा जहां वॉल्यूम काफी कम होगा लेकिन जो डेल्टा है वो डेल्टा आपको काफी इंक्रीज दिखाई देगा। रीजन वहां पर सिंगल साइड एंट्रीज आई होंगी। ये चीजें हैं जो आपके लिए कुछ क्लू देती हैं। ऑर्डर फ्लो में आप मार्केट प्रोफाइल के साथ चल रहे हो, आप डेल्टा को क्लियरली विजिबल होता है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि ठीक है मेरी स्टोरी बायर साइड है, यहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग डेल्टा मिला, यहां पर मतलब बायर की एंट्री हो चुकी है, मैं यहां बाई कर रहा हूं। यहां पर जो पीओसी लेवल्स है ये आपके लिए हेल्प करते हैं कि मुझे ये पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 2-3 टिक या नीचे जाके कुछ इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है, यहां पर मैं एसएल को ट्रेल करता हूं। यहां पर एक चीज आपको और बताता हूं, एक लॉजिकल चीज बताता हूं। मैंने यहां पर 3 बार का मूवमेंट देखा, बार 1, बार 2, बार 3। साथ में मैंने क्या देखा, बार 1 मैंने कहा -50 के डेल्टा, बार 2 मैंने देखा माइनस से 20 के डेल्टा, यहां पर देखा मैंने -5 के डेल्टा। मुझे यहां पर क्लियर, और साथ में अपने कॉन्टेक्स्ट देखा, प्रोफाइल का कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर मुझे क्लियर हो गया कि जैसे जैसे प्राइस डाउन साइड जा रहा है, राइट, जैसे जैसे प्राइस डाउन साइड जा रहा है जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, प्राइस यहां से अपसाइड जाएगा। ये आपको सिंपल क्लू बता रहा हूं, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करो, बस आपकी लोकेशन ठीक होनी चाहिए। ये डेल्टा के एडवांटेज है। या रिवर्स वे हम इसको कर लेते हैं, रिवर्स वे इन द सेंस मैंने कहा कि सेम वे मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर 3 बार आई हुई, 1 2 3, मैंने कहा 10 के, मैंने कहा सपोज 25 के, मैंने कहा 50 के, राइट। और इसके बाद फॉलो थ्रू डाउन साइड जाना बंद हो गया, रेस्पॉन्सिव बाइंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। एक और चीज मैं यहां पर कहूंगा, एब्जॉर्प्शन हम कैसे देख सकते हैं। मैं कहता हूं कोई स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा आगे चलते फिर बताता हूं, अभी आपको अब तक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहां अगर मैं देखूं तो एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा दिखाई दिया 1,71,000, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने डाउन साइड जाना बंद किया। आप उससे कह सकते हो रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, एग्रीड रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है, पर क्या हो रहा है, प्राइस डाउन साइड नहीं जा रहा। अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है मार्केट प्रोफाइल की, तो सिंपल वे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल वे में यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं कहता हूं हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो चुका है, मुझे बायर की प्रेजेंस दिखाई दी, जेन्युइन बायर है, ये जेन्युइन बायर है। यहां मैं अपना बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, स्टॉप लॉस के लिए ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल होगा मैं एज अ स्टॉप लॉस इसको यूज करूंगा। कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज फ्यूल आया, नंबर 1, विद नो फॉलो थ्रू इन डाउन डायरेक्शन, फॉलोड बाय प्रेजेंस ऑफ बायर, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। क्या मैं इस मूव को कैच कर सकता? फॉर श्योर मैं इस मूव को कैच कर सकता हूं। अब अगर आप देखोगे तो यहां मेजर जो वॉल्यूम चंक है वो टॉप पर आया, क्या ये रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी? नहीं, ये एक्चुअल इनिशिएटिव बाइंग एक्टिविटी है। इसका रीजन है कि कॉन्टेक्स्ट में हम हायर वैल्यू को एक्सेप्ट करके आ रहे हैं। तो ऑर्डर फ्लो में आपको क्या समझ में आया? ऑर्डर फ्लो ने आपको बताया, देखो स्ट्रॉन्ग पीओसी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीओसी आई है, यहां पर एक जोन मार्क कर दो या इस लेवल को मार्क कर दो, थोड़ा सा टॉलरेंस लेके चलो, मैं बाई कर रहा हूं, बेस्ट एंट्री विद बहुत छोटा स्टॉप लॉस। आपको पता है फ्यूल बहुत ज्यादा, ये जितना भी स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया है अभी ये फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ, 1,71,000 जो ये ट्रेड आया, अभी मूवमेंट नहीं आया, मतलब आपको डायरेक्शन कैच करनी है, ऑटोमेटिक आपको वहां पर मूव मिल जाएगा। तो डेल्टा को इस वे में हम यूज कर सकते हैं। जब कभी हम देखते हैं कि एकदम से, जैसे ये एक एक्टिविटी आई, मैंने कहा प्राइस अपसाइड गया 2250, ऑल ऑफ सडन एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया, राइट, ऑल ऑफ सडन बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया, प्राइस ने एक डाउन मूव लिया। करेक्टर चेंज का वेट करो, जहां पर आपको इनिशिएटिव एक्टिविटी मिलती है या जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग डेल्टा मिलता है और कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास कोई लेवल है, सीधे यहां पर आप सेल कर सकते हो।
ये आपका छोटा टाइम फ्रेम मैंने लगाया है बैंक निफ्टी में, जहां पर आपको पता है ठीक है कॉन्टेक्स्ट। देखो मेन चीज क्या होता है, मुझे वो एक्टिविटी ज्यादा अच्छी लगती है जब मैंने कहा प्राइस अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जाते में हिडन सेलिंग हिडन सेलिंग हिडन सेलिंग और उसके बाद इनिशिएटिव सेलर आ गया विद चेंज ऑफ करेक्टर। वो एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है जहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। बैकअप किसका है, बैकअप आपके पास मार्केट प्रोफाइल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें बैकअप देता है। ये एक एक्टिविटी अगर मैं देखता हूं तो सेम वे मैं यहां सोचूंगा, जस्ट अगर मैं देखूं, मैंने कहा 23,000 वॉल्यूम 9819 डेल्टा, 15,000 वॉल्यूम 24,000 डेल्टा, जस्ट एक राउंड फिगर कर रहा हूं, इतना स्ट्रॉन्ग डेल्टा, क्या वजह है, क्या रीजन है? मतलब यहां पर कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो मार्केट में अगर अपसाइड मूव नहीं आया, अगर कॉन्टेक्स्ट में यहां पर कोई रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहां से डाउन साइड आएगा। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग डेल्टा के बाद अगर प्राइस अपसाइड नहीं जा रहा, इतने स्ट्रॉन्ग डेल्टा के बाद, भाई स्ट्रॉन्ग डेल्टा आप अपने आप से कहो एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल या ओटीएफ की एंट्री हो चुकी है। अगर प्राइस अपसाइड नहीं जा रहा है, प्राइस अब डाउन साइड जाएगा। तो नियर बाई जो टारगेट होगा उसको आप अकॉर्डिंगली वहां तक उस ट्रेड को ले सकते हो। तो ये जो एक्टिविटी होती है, जो ऑर्डर फ्लो बार है, ये आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाती है प्रोफाइल के साथ में। अगर मैं कहता हूं कि प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, यहां पर प्राइस रुकने लगा, अब जब रुकने लगा तो उसका आंसर आपको क्या कौन देगा? इसका आंसर आपको देता है कि सपोज मैंने कहा कि माना बी प्रिंट है, मैंने कहा माना सी प्रिंट है, मैंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग पीओसी आया, इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंट आया, स्ट्रॉन्ग डेल्टा, प्राइस नीचे क्यों नहीं आया? नेक्स्ट में आप देखोगे फिर से स्ट्रॉन्ग आपको पीओसी दिखाई दे रही है और एक और स्ट्रॉन्ग पीओसी। मतलब ऑर्डर फ्लो ने आपको क्या क्लू दिया? अगर मैं छोटा सा जोन ड्रॉ कर दूं, केवल इस दो लेवल पर मैक्सिमम फ्यूल, इस दो लेवल पर मैक्सिमम फ्यूल आया हुआ, इट मींस प्राइस अभी यहां से डाउन साइड जाना है। एडॉन, एडॉन क्या है? अगर कॉन्टेक्स्ट में यहां पर प्रोफाइल का कोई भी लेवल है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप बहुत आराम से इस मूव को यही के यही पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो, राइट? तो ये है डेल्टा। यहां पर अगर मैं देखता हूं, जैसे छोटा सा क्लू देता हूं, मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया 1,79,000, 56,000, धीरे धीरे इंटरेस्ट मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दिया, प्राइस धीरे धीरे हायर वैल्यू को एक्सेप्ट करने लगा। ये वो जगह होगी जहां पर मैं बाई साइड एंट्री करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा मुझे बता रहा है कि बायर की एंट्री हो चुकी। कॉन्टेक्स्ट में सेलर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है या सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं। दो चीजें हो सकती है, सेलर या तो बायर ने एब्जॉर्ब कर लिया या पूरी तरह से उसको उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। एक्चुअली ये स्टोरी अलग चलती है कि बायर ने सेलर को एब्जॉर्ब किया, सेलर ने बायर को एब्जॉर्ब किया। ये टाइम टेकिंग चीजें, जो ये ऑर्डर फ्लो चार्ट हमें क्विक वे में समझा रहा है, उसको उसी वे में शॉर्टकट हमें दिया हुआ है कि हर चीज हमारे सामने आ रही है, उसको उसी वे में एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और आगे चलते हैं। ये वो जगह होगी जहां पर स्ट्रॉन्ग वे में बायर ने हैंड रेज किया, मैं यहां पर बाई कर रहा हूं, और इस बार के आसपास जो उसका मैक्सिमम जो उसका पीओसी होगा, जो स्ट्रॉन्ग पीओसी होगा, कुछ टिक नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। इम्बैलेंस, इसको मैं क्विक वे में कवर करता हूं। इम्बैलेंस जब कुछ लगातार हमें, इम्बैलेंस का पहले एक जनरल एक्सप्लेनेशन देता हूं। जब बायर और सेलर की बिड में कुछ डिफरेंस होता है, इससे 200%, 300%, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, तो उस लेवल पर आकर ये कलर को चेंज करता है। जैसे यहां पर मैं कहूंगा 3535, बायर ने 140 सेलर के साथ इंटरेक्शन किया, इम्बैलेंस है, राइट? तो जब ये इम्बैलेंस एक साथ आपको 3-4 स्टेक में दिखाई देता है, वो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। और खास बात है कि हम चाहते हैं कि जो ब्रेकआउट बार होती है उस पर हमें इस तरह के इंबैलेंस दिखाई दें। तो सही लेवल पर ये जो इंबैलेंस होते हैं टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट? तो ये हमारा हुआ इम्बैलेंस। अब हम लोग एक कंबाइंड वे में चीजों को यूज करना शुरू करते हैं। कंबाइंड इन द सेंस हम लोग मार्केट प्रोफाइल भी देख रहे हैं, हम लोग उसके साथ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और हम लोग इसके साथ ऑर्डर फ्लो भी देख रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा परसेप्शन में चाहूंगा मैं एक एग्जांपल मैं देता हूं, बाकी मैं देखता हूं कि हम लोग मतलब कितना प्रोग्रेस मैं आपके अंदर देखता हूं या कितना आप लोग अपने अंदर प्रोग्रेस देखते हो। एक एग्जांपल मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैंने देखा प्रोफाइल 1
प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4। मैंने कहा प्राइस डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 बैक टू बैक डाउन साइड है। लास्ट में जाने के बाद ये जो 3 और 4 प्रोफाइल है, यहाँ पर प्राइस ने डाउन साइड थोड़ा सा इंपैक्ट कम हुआ, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। ये क्या है, यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट डे प्राइस इस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, जो मेजर क्लू होगा। मैंने कहा प्राइस ओपन हुआ, मैंने कहा प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हुआ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कल के वैल्यू एरिया के अंदर है। अब इसके बाद मैं कहता हूं अगर इस लेवल को मैं होल्ड करता हूं, मैं बायर हूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में मुझे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया। अगर ये एक्टिविटी कुछ इस वे में होती, प्रिंट ए प्रिंट बी, मैं सेल ही सेल देखता, एक लिक्विडिटी जनरेशन का पॉइंट हम मान सकते थे। अभी अगर इस वैल्यू को हम होल्ड करते हैं, मैं केवल बाय देखूंगा। प्राइस अपसाइड गया, प्राइस अपसाइड गया, अब प्राइस आया यहां पर रिट्रेसमेंट पर। आप कहीं आप कहना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर हो, यहाँ कहीं आपको ऑर्डर फ्लो में जहां एंट्री मिलती है, सेम स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया आप कर सकते हो। अदरवाइज मैंने सिंपल इस लाइन को, ये यस्टरडे वैल्यू एरिया हाई का लाइन है, मैंने इसको एक्सटेंड किया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सेम लाइन, प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां अपसाइड गया, एक स्ट्रॉन्ग यहां पर मुझे फ्यूल दिखाई दे रहा है 57,000। प्राइस जब वापस आया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल दिखाई दे रहा है। मतलब एक मैं कहूं क्या मेरे पास स्ट्रॉन्ग फ्यूल है, यस स्ट्रॉन्ग फ्यूल हमारे पास में। लेवल हमारा क्या है, मैंने कहा जो स्टोरी चल रही है, राइट, जो स्टोरी चल रही है, स्टोरी बायर के फेवर में चल रही है। ये अनदर यस्टरडे वैल्यू एरिया हाई, हम इसको होल्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पर इनिशिएटिव बायर ने मुझे प्रेजेंस दी, यहां पर बायर ने हैंड रेस किया है, मैं यहां पर बाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे स्टोरी जो है वो स्टोरी मुझे अकॉर्डिंगली दिखाई दी है। ये मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर को कंबाइन वे में करने का तरीका। अब एक मैंने यहां पर चार्ट ओपन किया है, जस्ट एक मैसेज आप लोगों से मैं चाहूंगा कि क्या आप लोग इसको कैसे रीड करते हो, ये हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस है या लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। जैसा आप टेक्स्ट करो, इज इट हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस और लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। सिंपल, हायर आपको जो टेक्स्ट करना है, ये हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस है या लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। मार्केट प्रोफाइल अपना काम आपको कर चुका, आपको स्टोरी पूरी दिखा चुका है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने देखा कि अगर प्राइस इसके अभी जो जितना हम लोगों ने समझा या जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट होता था, या हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर, हमें क्या देखना है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग, नेक्स्ट डे की ओपनिंग देखना जो कंफर्मेशन देगा। नेक्स्ट डे अब मैं कहा प्राइस ओपन हुआ और इस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, राइट, प्राइस ओपन हुआ इस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, मैं बायर हूं। नेक्स्ट डे ओपनिंग मैंने क्यों मेंशन किया है, ये क्लू है। अगर प्राइस डाउन साइड जाता तो फिर ये थोड़ा डाउन साइड जाके वापस आता, लेकिन हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस के बाद ओपन अगर कल हम वैल्यू एरिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मींस यहां पर एक जेन्युइन अप मूव है। अब इस चीज को आप देखो, प्राइस ने क्या किया, एक्चुअली वो प्रिंट गया था, प्रिंट अपसाइड गया, प्रिंट डाउन साइड आए। ये आपके लिए चीज है जो आपको कैच करनी है। जब प्राइस ओपन हुआ, यहां पर हमने कहा स्ट्रॉन्ग डेल्टा 57,000। आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, 8-10 बार कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको डेल्टा का आइडिया हो जाएगा, मैं किसको स्ट्रॉन्ग कह रहा हूं, किसको वीक डेल्टा कह रहा हूं। प्राइस जब डाउन साइड आया, अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच है कि बायर अभी इस मार्केट में है। हमारी अप्रोच क्या है, यहां क्या मैं देखना चाहूंगा, यहां मैं देखना चाहूंगा कि और एक अटेम्प्ट हो फ्यूल का जिसके बाद डाउन साइड फॉलो थ्रू ना हो। मैं और क्या देखना चाहूंगा, ये एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस डाउन साइड आया, 1,12,000 डेल्टा, स्ट्रॉन्ग फ्यूल, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूल। किस जगह पर, मैं कहता हूं प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई। क्या मैं इसको बेरिश होऊंगा, मैं सेल करूंगा, नहीं मैं सेल नहीं कर रहा हूं। अगर कुछ ऐसा हो कि इस प्राइस का डाउन साइड मूव ना आए तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, राइट। बार 1 बार 2 मींस 57 और 1,12,000, ये पूरा फ्यूल अगर डाउन साइड नहीं आया फॉलो थ्रू, ये पूरा फ्यूल हमारा बायर फ्यूल हो जाएगा। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने डाउन साइड बंद कर दिया, डाउन साइड नहीं गया प्राइस। क्या कॉन्टेक्स्ट में कोई सपोर्ट है, हम कहते हैं यस कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट है, एक वैल्यू एरिया हाई। ये एक बार है जो स्ट्रॉन्ग, जहां पर बायर ने हैंड रेस किया, ये बायर ने यहां पर हैंड रेस किया, स्ट्रॉन्ग मुझे डेल्टा दिख रहा है, ये सारा बायर फ्यूल, ये फ्यूल है। यहां पर क्या मैं इसको रेस्पॉन्सिव बाइंग कहूंगा, नहीं, ये एक्चुअली
इनिशिएटिव आएंगे, हमें क्या करना है, सिंपल, आप इस लेवल को कहीं ना कहीं, ये जो लेवल हमारा आया, इस पे कुछ चंक काउंट कर लो जो हमारे लिए एक कहना चाहिए कि स्टॉप लॉस या उसका वर्क करेंगे। अब देखो प्राइस ने किस तरह से वर्क किया है, प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने होल्ड किया, होल्ड करके प्राइस तेजी से अपसाइड गया, राइट। तो ये एक्टिविटी है जो ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को कंबाइंड वे में हम कर सकते हैं। जब आप यहां देखोगे आपको दिखाई देगा, ठीक है, एसटीबी 1 बना है, एसटीबी 2 बना है, फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस। यहां पर आपको एक बायर का हैंड रेज मिला, कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, प्राइस फिर डाउन साइड आया, स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू फिर हमें मिला। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल जो भी एक्टिविटी आ रही है, वो एक्टिविटी हमारी क्या है कि यहां पर बायर की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। रीजन रीजन है कॉन्टेक्स्ट हमारे पास, राइट। एक ही एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अगर मैं देखता हूं, एक इलोंगेटेड प्रोफाइल फॉलोड बाय बैलेंस्ड, फॉलोड बाय बैलेंस्ड। मेन चीज, अगर इलोंगेटेड प्रोफाइल के बाद बैलेंस प्रोफाइल आ रही, डाउटफुल एक्टिविटी, डाउटफुल इन द सेंस कि प्राइस यहां से बायर अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, होल्ड। एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव यहां पर एक्टिविटी आई, इस इनिशिएटिव एक्टिविटी के बाद हम अपनी सेल कर सकते हैं। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखना चाहो तो मतलब जब आपकी स्टोरी बिल्ट हो गई है, जिस टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेजेंस दिखाई दे, वहां पर आप सेल कर सकते हो, राइट। एक एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है, इस एग्जांपल में इजी है समझना कि एक एचवीएन, इसको मैं वेटेज नहीं दे रहा हूं, इलोंगेटेड प्रोफाइल है, प्राइस अपसाइड गया, एचवीएन के आसपास आया, जब इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस अप्रोच कर रहा है, यहां पर आप देखो कि आपने क्या कहा, ये कौन सा लेवल था, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक एचवीएन आया है, स्ट्रॉन्ग डेल्टा 1,75,000, प्राइस ने यहां से डाउन साइड जाना बंद कर दिया। इट मींस अब हम सेल देख रहे हैं, एक एक्टिविटी है जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग एक डेल्टा दिखाई दे रहा है, जहां पर आप सेल इनिशिएट करोगे, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक्टिविटी है जहां पर ऑर्डर फ्लो आपको एक क्लू देता है, जैसे मैंने कहा कि एचवीएन को जो अप्रोच कर रहा है, एचवीएन को अप्रोच कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डेल्टा, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव बाइंग, राइट, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिव बाइंग। जहां भी मुझे स्ट्रॉन्ग यहां पर सेलिंग एक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग सेलिंग डेल्टा दिखाई देगा, मैं अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। चलो यहां पर मैं इसको क्लोज करता हूं। अब हम लोग आ जाते हैं आपके डाउट सेशन पर। आपके जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली में, एनी हाउ आस्क योर डाउट, प्लीज आस्क योर डाउट। मलय, एनी डाउट? नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। If you have any doubts, you can ask the questions, guys. एक वेंकटेश जी है, वो एक्चुअली जानना चाह रहे थे कि जो आपने लास्ट सेशन में वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताया था, तो वो एक बार वो फिर से जानना चाहते हैं कि उसका सेटअप कैसे करें। वो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, जो आपको टेम्पलेट दिए हैं, मेरा चार्ट का जो टेम्पलेट मिलती है, उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल और टीपीओ चार्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। ऐसा कोई सेटअप का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अजीश जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्स एंड मिनिमम डेल्टा। मैक्स और मिनिमम डेल्टा का, मिन डेल्टा का मतलब ये है कि एक डेल्टा बार जो ओपन हुई, ओपन होने के बाद कितना अपसाइड गया। जैसे हम लोग बार की बात करते हैं कि हाई ऑफ बार, लो, है ना, हाई कितना इस बार का, लो इस बार का कितना है, यहां पर ये चीजें हम देखते हैं। अब यहां पर एक्चुअली ये डिटेल्ड चीज है, इसको हमने सिंपल डेल्टा आप यूज करोगे बेटर रहेगा। बाकी अगर एक आपका जो डाउट है उसमें बस ये देखते हैं कि डेल्टा कितना अपसाइड तक गया, क्लोजिंग कहां पर आ रही है, जो क्लू देता है अबाउट बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर। पर जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि हमारी स्टोरी क्लियर है, ऑलरेडी हमारी स्टोरी क्लियर है, तो वहां पर आप केवल डेल्टा से अपना वर्क को यूज कर सकते ओके, और एक लाइन का क्वेश्चन है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सही टिक साइज और सही टाइम पीरियड एनालिसिस पर्पस के लिए क्या होना चाहिए। टिक साइज तो
अगर मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है तो आपको टिक साइज बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज निफ्टी 80 के आसपास में मिल जाता है और बैंक निफ्टी 200 के आसपास आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हो आप टाइम फ्रेम की। बेटर है, राइट, बेटर है कि पहले आप अपनी स्टोरी डिसाइड कर लो 5 मिनट टू 15 मिनट निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी आप 5 मिनट के आसपास ट्रेड कर सकते हो। मतलब जो मेरा हैबिट रहता है, मेरी हैबिट अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पर अपनी नजर रखता हूं, क्योंकि 5 मिनट पर नॉइज ज्यादा होगा। मैं क्या देखूंगा कि ठीक है 15 मिनट पर मेरे को यहां ट्रिगर मिल गया, जैसे ही 15 मिनट मुझे ट्रिगर मिलेगा मैं छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाऊंगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड लूंगा। क्या होगा, 5 मिनट की नंबर ऑफ बार मेरे पास होंगी, नॉइज बहुत ज्यादा हो जाता है। बेटर है, बेटर है। मैंने देखा कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई, यहां पर मुझे 15 मिनट पर एक एक्सेप्टेंस ऑफ हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू दिखाई दिया, विद यहां पर मुझे बायर का हैंड रेज दिखाई दिया। मैं तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाऊंगा। उससे क्या होगा, एंट्री वेरी क्विक हो जाएगी और स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो जाएगा। यहां जैसे इस एक्टिविटी पर जब हायर टाइम फ्रेम ने सपोर्ट किया मेरी ट्रेड को, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, जब प्राइस बिल्कुल हिट कर रहा है किसी लेवल को, अगर आप बहुत एग्रेसिव हो, आप थोड़ा सा अपने नेचर को देखो, अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो जब प्राइस हिट कर रहा है किसी इंपॉर्टेंट लेवल को, वहां पर जाकर आप छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट को यूज कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ। नेक्स्ट। ओके, सचिन जी पूछ रहे हैं, इज इट यूज फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग एंड इफ यस हाउ टू यूज इट? एक बार रिपीट करो। हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, तो ओके, कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो एक्टिविटी आप 30 मिनट पर देख रहे हो मार्केट प्रोफाइल की, अभी हमने क्या बात किया, हमने कहा कि सपोज ए प्रिंट बी प्रिंट सी, मैंने कहा एक वैल्यू क्रिएट हो गई, राइट, मैंने कहा हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो गई। इस इंडिविजुअल पीरियड को काउंट ना करके आप एक दिन के प्रोफाइल को एज अ वन टीपीओ यूज करो। मींस प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, प्रोफाइल 4, प्रोफाइल 5, सपोज ये आया, यहां पर आप बाई कर सकते हो। ये एक हायर वैल्यू की एक्सेप्टेंस होने दो, ये पोजिशनल बाइंग आपकी होगी, राइट। ये आप कैसे कर सकते हो, कोई इलोंगेटेड प्रोफाइल आपने देखा जिसका कोई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा, ये आपका पोजिशन एक कुछ टाइम का बाइंग हो जाएगा जो यहां तक आपको मूव देगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल जो हम लोगों ने प्रिंट वाइज, जो हम लोगों ने पीरियड वाइज जो बात की, वो आप डे टाइम फ्रेम पर देखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिलहाल तो हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। चलो ठीक है, फिर तो मैंने बाकी हाँ कुछ और मैंने नहीं नहीं, बस अच्छा नॉन बाकी क्वेश्चन। हाँ, बाकी आपको और कुछ डाउट होता है या कुछ और डिटेल में आपको डिस्कस करना होता है, आपको मेरी डिटेल एक्सेल पिक से मिल जाएगी, आप वहां से पूछ सकते हो। चलो गाइस, यहाँ पर हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक Thank you Paraksa for joining. यू। Thank you everyone for joining, and if you have any feedback, please do share it at support@miracharts.com. Thank you so much guys for joining this webinar.